sir. Good morning, everyone. What had we discussed in the previous class? We had discussed various marketing functions, remember? Yes, sir. And we had discussed the meaning of marketing mix. Okay. So, and we discussed that marketing mix comprises of 4 types of mix, which are product mix, price mix, place mix, and promotion mix. Okay. Now we will discuss these in detail one by one, starting with product mix. What do we mean by the term product? Product is anything that is offered for sale. Very good. According to Philip Kotler, a product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use, or consumption. It includes physical objects. It includes physical objects and just a sec. जो लोग लेट ज्वाइन करते रहते हैं ना, इनकी वजह से डिस्टरबेंस रहती है थोड़ी. Yes. It includes physical objects, services, personalities, places, organizations, and ideas. Okay. So I repeat, anything that can be offered to market. For what purpose? For attention, for acquisition, for use or consumption. अब इसमें हमने कई टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेंशन किए. लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम. टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. फर्स्ट इज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? A table. That can be seen chair. or touched. Very good. Which can be seen and touched, which have physical existence. Right? Pen, register, table, television, etc. Then another type of product is services. Services means Which we cannot touch, intangible. yes, which are intangible, but they can be experienced, right? Like right now you are, Its presence can be felt. yes, right now you are experiencing which service? Education service, right? So services are like insurance, transportation, education, banking, etc. Then another type of product can be experiences. When you watch a movie or you watch a play, okay, so movie shows, theater shows, television serials, web series, music concerts, all these are experiences. You experience a story or a narrative in these. Clear? Yes, sir. Then places. How can places be products? Have you seen ads of Incredible India, Kerala, God's Yes, own sir. country, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, इस तरह की एड्स आती है ना. तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन द प्लेसेस कैन बी मार्केटेड. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज आइडियाज, लाइक सेफ ड्राइविंग, फैमिली प्लानिंग. तो जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड जनरली होते हैं, इस तरह की एड्स भी देखते हैं हम. तो आइडियाज कैन ऑल्सो बी प्रोमोटेड. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन, डायरेक्टरी सर्विसेज, इंटरनेट सर्च इंजन्स,
These are also products which provide us information. ठीक है, गूगल एक प्रोडक्ट हो गया जो हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन. क्लियर? Yes, sir. देन पर्सनैलिटीज. इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल लीडर्स की कितनी कैंपेनिंग होती है, कितनी मार्केटिंग होती है ना. सिमिलरली कोई किसी मैजिशियन का मैजिक शो होना हो तो मैजिशियन के नाम से बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बैनर्स लगते हैं. सो पर्सनैलिटीज कैन ऑल्सो बी मार्केटेड. देन प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, शॉप्स भी हो सकती हैं. ठीक है. देन इवेंट्स. स्पोर्ट्स इवेंट्स लाइक आईपीएल. ठीक है, अभी दुबई गए हुए हैं आईपीएल के लिए, तो स्पोर्ट्स इवेंट है, वहां पे जितने लोग टिकट्स परचेज करके आएंगे स्टेडियम में, दे आर बाइंग दैट प्रोडक्ट, दैट इवेंट एज अ प्रोडक्ट. देन कल्चरल इवेंट्स आर ऑल्सो देयर. कोई म्यूजिकल नाइट है, कोई और कोई कल्चरल इवेंट है. ठीक है, न्यू ईयर प्रोग्राम, इंडिपेंडेंस डे का कोई कल्चरल प्रोग्राम. सो इवेंट्स आर ऑल्सो मार्केटेड. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देन ऑर्गेनाइजेशंस. कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस की भी ऐड आती हैं. किस लिए? ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक इमेज इंप्रूव करने के लिए, उसकी एक अच्छी पब्लिक इमेज पोर्ट्रे करने के लिए. ठीक है. टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now when we buy any product, we expect or seek three types of benefits from the product. There are three main types of benefits that consumers seek from any product. ठीक है, किसी प्रोडक्ट का एग्जांपल लो. Book. Book. बुक. ओके, तो बुक का बेसिक फंक्शन क्या है? Provide knowledge. प्रोवाइड नॉलेज. तो ये उसका फंक्शनल बेनिफिट है, द बेसिक फंक्शन फॉर विच दैट प्रोडक्ट इज यूज्ड. ठीक है, अगर हम पेन का एग्जांपल लें तो फंक्शनल बेनिफिट इज राइटिंग. सेकेंड इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, द साइकोलॉजिकल वैल्यू अटैच्ड विद द प्रोडक्ट. इफ समवन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग और फॉन्ड ऑफ गेनिंग नॉलेज, तो बुक पढ़कर उसे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज द साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ बुक. ठीक है. इसी तरह से पेन के थ्रू किसी को कुछ भी लिखकर जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की सेटिस्फैक्शन मिलती है, दैट इज अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ पेन. ठीक है. देन कम सोशल बेनिफिट्स, द सोशल पर्पस सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्ट. बुक से क्या सोशल पर्पस या सोशल बेनिफिट सेटिस्फाई हो सकता है? सर नॉलेज मिलती है ना. हाँ, नॉलेज मिल रही है, Knowledge लेकिन उसका मिलती है, सोशल तो बेनिफिट क्या है? नॉलेज मिल रही है, फंक्शनल बेनिफिट हो गया. अगर हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज में हम अपनी नॉलेज का यूज कर सकते हैं फॉर द Very बेनिफिट good. ऑफ द सोसाइटी. यस, एक्सीलेंट. हमने जो नॉलेज गेन की, अब हम उस नॉलेज को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ. तो कभी भी किसी ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन चल रही हो जिसकी नॉलेज हम गेन कर चुके हैं बुक्स रीड करके या कहीं और रीड करके, तो हम भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं और हम अपनी वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ. दैट इज द सोशल बेनिफिट वी डिराइव फ्रॉम अ बुक. सिमिलरली पेन का अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो लेटर्स लिख के या मैसेजेस लिख के फ्रेंड्स को हमारा सोशल कॉन्टैक्ट्स बने रहते हैं, हम सोशल सर्कल में अपने एक्टिव रहते हैं. सो दैट इज द सोशल बेनिफिट ऑफ पेन. क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो इसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो, उसमें 3 तरह के ये बेनिफिट आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है. आज क्लास के बाद 5-6 प्रोडक्ट्स के नाम लिखना, कोई भी 5-6 प्रोडक्ट्स, और उनके लिखना फंक्शनल बेनिफिट क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, सोशल क्या है. एकदम क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट. और भी
Now, product mix. What is product mix? Product mix involves planning and developing the right type of product that will best satisfy the needs of customers. Now, product mix consists of various functions under it. First one is branding. What is branding? तो किसी प्रोडक्ट को कोई नेम देना, either Yes, generic Unique or name. brand name. yes. ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था when we were discussing functions of marketing. ठीक है, ब्रांडिंग नामकरण संस्कार है प्रोडक्ट का, उसका एक नाम रखना, एप्रोप्रिएट नाम रखना. इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंपिंग अ प्रोडक्ट विद सम यूनिकली आइडेंटिफाइंग नेम. जब बच्चों का भी नाम रखते हैं पेरेंट्स, तो कोशिश रहती है कि कुछ यूनिक नेम हो, बहुत कॉमन नेम नहीं हो. क्यों? क्योंकि अगर कॉमन नेम होगा तो सपोज क्लास में 40 में से 10 बच्चों का सेम नाम हो तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. तो इसलिए कोशिश रहती है पेरेंट्स की कि बच्चे का नाम थोड़ा यूनिक रखें, जो ज्यादा कॉमन ना हो. ठीक है. सिमिलरली अपने प्रोडक्ट का नाम रखते हुए भी वी ट्राई टू कीप अ यूनिक नेम सो दैट द कस्टमर डज नॉट कंफ्यूज our product with any other product. So uniquely identifying name, term, sign, symbol, design or a combination of them. तो इन सबको मिलाकर it is called brand. Clear? Yes, Yes, sir. sir. तो ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स अब डिस्कस करते हैं. ब्रांड तो अभी मैंने आपको बता दिया, अ यूनिकली आइडेंटिफाइंग नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम. इन सबको मिलाकर हम कहते हैं ब्रांड. अब ब्रांड के भी कई कंपोनेंट्स हैं फर्दर. एक तो है ब्रांड नेम, द लैंग्वेज पार्ट ऑफ ब्रांड दैट कैन बी रेड, रिटन एंड स्पोकन. ठीक है, कुछ एग्जांपल दे सकते हो ब्रांड नेम के? बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. पियर्स है, कोलगेट है, पतंजलि है, टाटा एयरलाइंस है. ठीक है, बहुत टाटा बेसिकली अपने आप में टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. देन नेक्स्ट इज ब्रांड मार्क, द नॉन लैंग्वेज पार्ट ऑफ ब्रांड इन द फॉर्म ऑफ साइन, सिंबल और डिजाइन. इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? Sign तो up. LIC का सिंबल, LIC का वो सिंबल ऐसे करके है ना. और टाटा का सर्कल के बीच में टी लिखा हुआ. ठीक है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ब्रांड मार्क्स. और ब्रांड मार्क को अगर कंपनी रजिस्टर करवा लेती है विद द गवर्नमेंट, so that no one else can copy that brand mark, no one else can use that brand mark without the permission of the owner, then that brand mark is called trademark. What is it called? Trademark. 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 So trademark is a brand registered with the government under the Trademarks Act. ठीक है, इसका रजिस्टर कराने का पर्पस ये होता है कि और कोई हमारे ब्रांड मार्क को कॉपी ना कर ले. अगर करेगा तो फिर हम उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं. नाउ एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग टू मार्केटर्स. मार्केटर्स मतलब सेलर्स. सेलर्स के लिए क्या फायदे हैं ब्रांडिंग के, बताओ? सर अगर वो एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज कर रहे तो उन्हें उनके पता है कि उस ब्रांड का क्या क्वालिटीज है, और फिर उसके बाद वो वापस वही यूज करेंगे, उनको दूसरे कोई ब्रांड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सेलर्स के लिए बेनिफिट हुआ या कस्टमर्स के लिए? सर ये कस्टमर्स के लिए हुआ. कस्टमर्स सर के लिए. सेलर्स के लिए ये हुआ कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू मतलब उनके सेल में रहेगा और डिमांड में रहेगा, जिसकी वजह से वो उसी ब्रांड का एक और प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और वो अपने कॉम्पिटिटर से भी अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट. यस, वेरी गुड. और कोई बेनिफिट या एडवांटेज सेलर्स के लिए?
First is enables product differentiation. The brand name clearly distinguishes the product from several similar products. ठीक है. Second is helps in advertising and display. इनफैक्ट कई ब्रांड नेम तो इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि लोग प्रोडक्ट को ही ब्रांड नेम से बुलाने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है कीबोर्ड, लेकिन बहुत से लोग उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं कैसियो. कैसियो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कैसियो एक ब्रांड है जिसका ये इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा बिकता है. तो कई लोगों ने इंस्ट्रूमेंट का नाम ही कैसियो लेना शुरू कर दिया. ठीक है. तो कई इतना पॉपुलर हो जाते हैं कई ब्रांड कि वो उसको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं. क्लियर? Yes, sir. डिफरेंशियल प्राइसिंग. अगर डिफरेंट ब्रांड नेम होगा तभी तो हम डिफरेंट प्राइस भी रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का. और कई बार तो एक ही कंपनी कई वैरायटीज प्रोडक्ट की बेच रही होती है. जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है मार्केट में, आपको मालूम है कितने सोप्स हैं इनके? More than 20 varieties of soaps they sell under different brand names. ठीक है. लक्स भी इनका है, पियर्स भी इनका है और बहुत सारे हैं. तो क्यों? ताकि हर वैरायटी में थोड़ा सा फ्रेग्रेंस, क्वालिटी, कलर चेंज करके, पैकेजिंग चेंज करके अलग अलग नाम से ये अलग अलग प्राइस सबका चार्ज कर पाए. क्लियर? Yes, sir. अगर वो सारे सोप्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से बेचेंगे, और इसका सिर्फ नाम हिंदुस्तान है, ये इंडियन कंपनी नहीं है. हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ कंपनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ठीक है. सो नेक्स्ट इज ईज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट. जब एक बार एक ब्रांड नेम पॉपुलर हो जाता है तो उस ब्रांड नेम के अंडर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना बड़ा इजी हो जाता है. जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स एक बार पॉपुलर हो गए तो अब पतंजलि वाले कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते रहते हैं पतंजलि ब्रांड नेम में ही, तो लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि पीपल ट्रस्ट दैट ब्रांड नेम. क्लियर? यस सर. Yes, sir. अब आते हैं कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ब्रांडिंग के. बताओ. सर एक तो उन्हें, अगर वो एक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उन्हें पता है कि उस प्रोडक्ट वो कैसा प्रोडक्ट है, तो उन्हें सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है और उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं होती दूसरे प्रोडक्ट्स. वेरी गुड. They are aware of the good quality of the product. एब्सोल्युटली. और कुछ? और सर उनके लिए एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि ये प्रोडक्ट हम अच्छी क्वालिटी का यूज करें, तो वो दूसरों को भी, मतलब रिलेटिव्स को बताते हैं अपने, मतलब और इसको प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं. यस. Easily identify कर सकते हैं प्रोडक्ट को. बिल्कुल. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन. अगर कोई ब्रांड नेम नहीं हो तो सोचो आपको शॉप पे जाके कैसे आप कहोगे शॉपकीपर को कि क्या चीज चाहिए. लेकिन एक ब्रांड होने से आप इजीली बोल सकते हो शॉपकीपर को. अच्छा सपोज सेल्फ हेल्प आउटलेट्स में जा रहे हो जहां पे आप खुद चीजें पिक करते हो लाइक बिग बाजार, तो वहां पे भी हर ब्रांड का पैकेजिंग अलग है, वे ऑफ राइटिंग द नेम, सिंबल इज डिफरेंट. तो दूर से ही आपको पता चल जाता है कि जो आपको ब्रांड का, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए वो कहां पर रखा है. आप उसे पहचान लेते हो दूर से ही. एंड इट हेल्प्स यू इन इजीली बाइंग द प्रोडक्ट बाय आइडेंटिफाइंग इट इजीली. देन नेक्स्ट इज एंश्योर्स क्वालिटी. किसी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करते करते आपको आइडिया लग जाता है कि उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स से कैसी क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है. और कंपनीज भी कोशिश करती हैं कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखें अपने. सो कस्टमर को थोड़ी सी एश्योरेंस मिल जाती है कि हाँ अगर हम इस ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी.
अगर उन्होंने पहले भी यूज किया हुआ है तो। एंड थर्ड, एज यू सेड, ऑल्दो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक बेनिफिट है, स्टेटस सिंबल। पीपल फील प्राउड बाय यूजिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑफ रिप्यूटेड ब्रांड, सम पीपल डू। ठीक है, आर दीज पॉइंट्स क्लियर? यस सर। Yes, sir. एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। जब पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम रख रहे होते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, कैसा होना चाहिए नाम? सर एक तो वो सबसे अलग होना चाहिए। Unique, यूनिक होना चाहिए, ओके, सर इजी टू प्रोनाउंस easily understandable, वेरी गुड। और तो क्या ये क्राइटेरिया प्रोडक्ट का नाम सोचते हुए भी अप्लाई होते हैं? यस सर। होते हैं, ठीक है। सो एसेंशियल्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। फर्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट या सजेस्टिव। जैसे टीवी चैनल का नाम है दूरदर्शन, आप दूर बैठे दर्शन कर रहे हो, दूर दूर दुनिया में क्या हो रहा है, आप घर पे बैठे दर्शन कर रहे हो। यू आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन फार अवे प्लेसेस ऑल्सो। सो दूरदर्शन बड़ा सजेस्टिव नाम है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट का नाम दावत रेस्टोरेंट, ठीक है, या पंजाबी रसोई, तो नाम से ही आइडिया लग रहा है कि ये फूड आइटम से रिलेटेड कुछ है। सो इट शुड बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। सेकेंड इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब अगर आपका प्लान है आगे और भी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने का, तो ब्रांड नेम कुछ ऐसा होना चाहिए कि और प्रोडक्ट्स भी उसमें एकोमोडेट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, आपने एक रेस्टोरेंट खोला और इनिशियली सिर्फ चाइनीज आइटम्स रखी, ठीक है, आपने उसको नाम दे दिया चाइना हट। बाद में आपने साउथ इंडियन भी शुरू कर दिया, लेकिन क्या लोग साउथ इंडियन के लिए इस रेस्टोरेंट में आएंगे? ज्यादा लोग जिसका नाम चाइना हट हो? नो सर। नहीं। नो सर। लोगों को डाउट होगा कि पता नहीं यहाँ साउथ इंडियन, तो मतलब मोस्टली लोगों को यही लगेगा नाम से कि साउथ इंडियन तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो जो साउथ इंडियन फूड Yes, sir. खाना चाहते हैं वो उस रेस्टोरेंट में जाएंगे ही नहीं। तो अगर आपका प्लान है कि आगे आपने दूसरे वैरायटी ऑफ फूड भी लॉन्च करने हैं, तो आप पहले से ही नाम ऐसा रखो जिसमें दूसरे टाइप्स भी इजीली एकोमोडेट हो जाए, ठीक है। बच्चों का नाम रखते हुए, स्पेशली हमारी कंट्री में, इंडिया में, ये स्पेशलिटी है जो बहुत सी और कंट्रीज में आपको नहीं मिलेगी। नेम्स आर वेरी मीनिंगफुल। कभी ऑब्जर्व किया है आपने? यस सर। देवेश का क्या मतलब होता है? सर मतलब शिव जी। दोबारा। सर शिव जी। शिव जी का ही नाम है एक और, ओके। दृष्टि, आपके नाम का क्या मतलब है? sir, eyesight, आई साइट या विजन, अगर ब्रॉडर सेंस हम लें तो, ठीक है। तो बड़े पॉजिटिव मीनिंग वाले नेम होते हैं, ठीक है, नॉट लाइक। टेंडेंसी होता है कि भगवान के नाम से रिलेटेड रखें। यस, भगवान के नाम से या फिर और कोई पॉजिटिव मीनिंग हो जिस नेम का, ऐसे नाम जनरली हमारे रखे जाते हैं इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं, जॉर्ज, बुश, तो कोई मतलब जिनका कोई पॉजिटिव मीनिंग नहीं है। जैक, हैरी, इन नामों के कोई एज सच मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोडक्ट भी जब हम नाम रख रहे हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसका कुछ पॉजिटिव मीनिंग हो। और पॉजिटिव मीनिंग तो हो, लेकिन साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कौन सी लैंग्वेज में। अगर हम प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर रीजन में ही लिमिटेड रहेगा हमारा प्रोडक्ट, तब तो उस रीजन की लैंग्वेज में। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट नेशनली या इंटरनेशनली सेल होना है, तो फिर हमें यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा प्रोडक्ट का नाम रखते हुए कि भाई मेन जो हमारी लैंग्वेज है उसमें तो पॉजिटिव मीनिंग है, कहीं किसी और लैंग्वेज में नेगेटिव मीनिंग तो नहीं होता उस वर्ड का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मम्मी ब्रांड नेम से आप अगर टॉयज बेचो, किड्स प्रोडक्ट्स बेचो,
तो बड़ा पॉजिटिव मीनिंग है मदर, लेकिन इजिप्ट में इसका क्या मतलब हो जाएगा? दूसरी वाली मम्मी। डेड बॉडी को मम्मी कहते हैं वहां पे, ठीक है। तो Yes, sir. थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि पॉजिटिव मीनिंग हो, ठीक है। डिस्टिंक्टिव मतलब यूनिक, ताकि कस्टमर कंफ्यूज ना हो जाए कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में और हमारे प्रोडक्ट में। देन शॉर्ट, सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस, ऐसा क्यों? सर क्योंकि अगर मुश्किल होगा तो फिर लोग कम प्रेफर करेंगे उसको लेने में। क्यों कम They प्रेफर? wouldn't be able to communicate what they want. एब्सोल्युटली, वेरी गुड। क्योंकि अगर शॉर्ट सिंपल होगा तो लोगों को याद भी रहेगा। अगर कुछ लंबा सा नाम है, डिफिकल्ट सा नाम है, तो भूल ही जाएंगे शॉप पे जाते जाते कि क्या था नाम उसका प्रोडक्ट का। दूसरा, प्रोनाउंसिएशन में भी इजी होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है अगर प्रोनाउंसिएशन उसकी डिफिकल्ट है तो बहुत से लोग हेजिटेट करेंगे उस प्रोडक्ट को मांगते हुए, इस चक्कर में कि कहीं हम गलत ना प्रोनाउंस करें और हमारा मजाक ना बने। सो इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस। देन लीगल प्रोटेक्शन, ब्रांड नेम और मार्क जो है हमारा, हमें उसे रजिस्टर करवा लेना चाहिए, यानी ट्रेडमार्क ले लेना चाहिए, सो दैट अदर प्रोड्यूसर्स कैन नॉट इमिटेट इट, दे कैन नॉट कॉपी इट। एक बार अगर हमने रजिस्टर करवा लिया तो फिर और कोई भी अगर उसे यूज करता है हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. देन स्टेइंग पावर, हमारे जो ब्रांड नेम है उसके अंदर स्टेइंग पावर होनी चाहिए, मतलब लंबे टाइम तक जो चल सके, ऐसा नहीं थोड़े टाइम के लिए ही रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईपीएल चल रहा है, आईपीएल मैचेस चल रहे हैं और आईपीएल के नाम से कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो आईपीएल मैचेस कुछ दिन बाद जब खत्म हो जाएंगे तो वो नाम इतना रेलेवेंट नहीं रह जाएगा बाकी थ्रू आउट द ईयर। सो इट शुड हैव अ स्टेइंग पावर। क्लियर? यस सर। एनी डाउट अप टू हियर? सर एक बार जेनेरिक नेम का मतलब बता दो। जेनेरिक नेम का मतलब? यस सर। मेडिसिन के केस में ना? यस सर। सर जैसे हम लोग ब्रांड नेम और जेनेरिक नेम में वो करते हैं डिफरेंशिएट, Yes. वो वाला। यस। जैसे पायलट पेन जब हम कहते हैं तो ये एक ब्रांड नेम है, पायलट लक्सर का ब्रांड नेम है, ठीक है, उनकी एक लक्सर वालों का ब्रांड है पायलट। यस सर। लेकिन अगर हम सिंपली कहें कि जेल पेन, अब जेल पेन किसी का भी हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज का हो सकता है, तो जेल पेन जो नाम है वो जेनरिक नेम है पेन का। अगर हम एड जेल कह दें या पायलट पेन कह दें तो ये पर्टिकुलर ब्रांड के जेल पेन हो गए, लेकिन हम सिंपली कहते हैं जेल पेन तो वो जेनरिक नेम है। ऐसे ही पीसीएम एक सॉल्ट है, पैरासीटामोल मेडिसिन में, ठीक है। तो अगर डॉक्टर सिर्फ सॉल्ट का नाम लिखे प्रिस्क्रिप्शन पे कि कौन से सॉल्ट वाली मेडिसिन लेनी है, तो उसे कहा जाता है जेनरिक नेम, जेनरिक नेम। लेकिन अगर वो कोई ब्रांड लिख दे, डॉक्टर लिखे क्रोसिन लेनी है, तो क्रोसिन एक पर्टिकुलर ब्रांड की पैरासीटामोल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की एक ब्रांड है। डोलो एक दूसरी पैरासीटामोल है, तो जेनेरिक नेम है उसका पैरासीटामोल, लेकिन अलग अलग कंपनीज अलग अलग ब्रांड नेम से उसे बेचती हैं। तो जेनेरिक नेम इसीलिए कहा जाता है कि लिखना चाहिए डॉक्टर्स को, मेडिसिन के केस में प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि सेम सॉल्ट की मेडिसिन अलग अलग ब्रांड्स की बहुत डिफरेंट प्राइस रेंज में आती है। अगर डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक नेम लिखें, सॉल्ट का नाम लिखें सिर्फ, तो कस्टमर जाके केमिस्ट को ये कह सकता है कि इस सॉल्ट की कौन कौन सी मेडिसिन हैं वो बताओ और कितने कितने की हैं, एंड कस्टमर कैन चूज देम। तो ऑब्वियसली कस्टमर सस्ती वाली लेना चाहेगा, लेकिन डॉक्टर्स अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम लिख देते हैं और वो ब्रांड नेम अगर महंगा है तो कस्टमर्स का
की कॉस्ट बढ़ जाती है कस्टमर्स के लिए उसकी, इसलिए ये कहा जाता है जेनेरिक मेडिसिन लिखनी चाहिए। और डॉक्टर ने अगर कोई भी मेडिसिन ब्रांड नेम से भी लिखी है तो आप पहले इंटरनेट पे उसका सर्च कर लो जेनरिक नेम, और उस जेनरिक नेम से आप फिर केमिस्ट से मांगो या ऑनलाइन ऑर्डर करो, देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आती है। यू विल बी सरप्राइज कितना कितना प्राइस डिफरेंस होगा कई ब्रांड्स में। इज इट क्लियर? ओके, एनी अदर डाउट एनीवन? We'll stop over here today. Thank you.